जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, shall we start? हसन साहब स्टार्ट करें प्लीज। स्टार्ट करें? जी जी Okay. जी जी हसन साहब स्टार्ट करें। ठीक है। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. We welcome and thank to all the participants who took their precious time out to learn more about the ETFs, a new investment vehicle made available to investors in Pakistan, that too directly from the ETF issuers. Today, we are honored with the presence of Mr. Farooq Sabazwari, the Commissioner, SCCP, esteemed representatives of all the ETF issuers and the respected track holders fraternity. To start with, let me describe ETF in a one line, and I will not be doing any presentation. So in one line, an exchange traded fund, ETF, is a type of investment fund that trades on exchange, simple. For a global background, with inception in early 90s from Toronto Stock Exchange, ETFs have taken an exponential growth trajectory. As of October last year, there were 51 countries with over 8,600 ETFs, reaching a global asset under management of over 7.3 trillion US dollars, and that too in different ETF categories. US being the leader with over 5 trillion in US dollars asset under management. And from categories perspective, most of it, over 5 trillion US dollar, is invested in equity ETFs. There are other type of ETFs as well, like precious metal, fixed income, commodity, currency, etc. The journey of ETF in Pakistan goes more than a decade back, and with the grace of Almighty, the Pakistan's capital market witnessed offering of this unique investment product to the investors in March last year with the simultaneous launch of two ETFs and from the two issuers, NIT and UBL funds. This was all possible by the diligent and hard work of all stakeholders, namely the NIT, UBL, JS Global as market maker, CDC, National Clearing, PSX, under the continuous guidance and leadership of Apex regulator SCCP. Later on in October, we had the launch of two more ETFs from asset management companies of Al Mizan and NBP funds. In today's session, we'll have all the ETF issuers here with us to talk about their specific ETFs. However, we would strongly encourage all those interested in knowing more about the detailed description, methodology, benefits, etc. for ETFs to visit PSX website that provides a rich source of ETF information, frequently asked questions, etc. In addition, you may also visit PSX YouTube channel that carries the previously held detailed webinars on ETF.
And furthermore, PSX is very much available to hold individual sessions with any institution interested in interactively knowing about more about ETFs for any role that they look for. And before we move forward, we are pleased to inform the investors that we have now 2 market makers committed to provide liquidity in the ETF market. JS Global, who tirelessly worked with us to have the ETFs launched. And most recently, actually today, we had the signing ceremony with MRA Securities, who joined the club of PSX market makers to provide liquidity in all of the 4 ETFs. I would now like to invite Mr. Farooq Sabzwari, the Commissioner SCCP, to deliver the keynote address. However, before I hand over to Mr. Sabzwari, I would like to let all know that the contribution of Mr. Sabzwari to the development of ETF goes far before he took over his responsibilities with Securities and Exchange Commission. He was very keen and constructive in working while being with BMA. So, Mr. Sabzwari, over to you. Thank you. Thank you very much, Hassan. It's great to be back, even though it's virtual. But this is probably my 5th, I think, visit. First virtual, but 5th visit to the exchange. And I have to admit, my track record is now 100%. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं exchange गया हूँ और market ऊपर हो. आज भी market मैं देख रहा हूँ नीचे है. And whenever I've touched the gong, because it's usually in a gong ceremony, I've always told people मुझे मत पकड़ाएं gong because the market will drop from here. So आज वो 100% मेरी record जो है वो मुकम्मल है. मैंने कहा मैं वहाँ ये तो बताऊं सबको. ETF, thank you Hassan, आपने अच्छा you set the stage for this session. I want to thank all the participants who are here, especially the AMCs who've already got ETFs in the door, and those who are working with us to bring some excellent theme-based ETFs to the market in the next few months or so. So I want to thank all of you. I want to especially thank, obviously, the one market maker that took the initiative to join the bandwagon, and that was JS Global. I know we are told that another one is taken over today as well. But this is all great to see. So why are they important? I mean, let me just dwell very quickly into why ETFs are important. So Hassan's already pointed out that ETFs account for about 30% of all AUMs abroad, which is a big thing. What that tells you is that this low-cost, diversified product, which is passively managed, has clearly taken off internationally because it really came about less than 20 years ago. So it's really made a lot of a leapfrog sort of into the investment management universe. And I don't see any reason why that will not happen in Pakistan as well. So as I said, internationally, they account for about 1/3 of all AUMs. Why is it that ETFs have really picked up? And that's the reason we wanted to do this webinar. We wanted to get all stakeholders on board, try and just insinuate what makes ETFs work, dwell around the topic of what are the advantages of an ETF, and basically just make sure that people around the investment management universe understand the advantages of being part of an ETF. So cost efficiency, already Hassan Saab ne abhi bataya, that's one basic reason. Because they are passively managed funds, the expense ratio for running an ETF is comparatively lower, since no management fee or commission is involved. You just go back to a few months ago when we started this initiative, I remember we mentioned that agar liquidity kam hogi, to spread bahut zyada hoga, and this will discourage people from coming in. The heartening thing is the spreads are not that high either side. I'm told they've been managed in the region of 1.25%. But the good news is, as more theme-based ETFs come to the table, as more brokers are added to the market-making table, these spreads will narrow a lot more. So that's the good news there as well. So apart from the cost efficiency, there's no lock-in period. They trade like shares, so you can walk in, walk out. They're passively managed.
But two additional thoughts that I really want to leave here. This passively managed ETF initiative in Pakistan is only set to grow. As I said, there are only 4 at the moment. We have a number in the pipeline. There's a lot of interesting theme-based work that's taking place. I was looking at some of the ETFs that attract a lot of money abroad. So one of them is called the First Cloud Computing ETF. Oracle and Microsoft are 2 of the stocks, which are the largest holdings in those. There's something called an ARK Innovation ETF. उसके अंदर सबसे बड़ी holding is Tesla, because they invest in disruptive, innovative technology. I'm told one of the AMCs is working on a consumer-oriented ETF. To me, makes perfect sense. 220 million people, consumer-oriented. That should do well as well. And other theme-based work is in the pipeline. So I think this product profile is basically set to grow. Bottom line, lower cost, instant diversification at the click of a button. And yes, you also have the ability to invest in a hot sector. So for example, I mentioned disruptive technology being one. Jisme Tesla is one of the largest holdings in that theme. So I will be going back to you, Hassan, but I just thought I'd begin this session with that thought that this market will only grow in ETFs. So hence it's important that the awareness cycle begin. Having said that, I'll just pass it on back to you. Thank you very much, Farooq Saab, for providing this an in-depth, informative, and really visionary outlook for Pakistani ETF market. And as you said, there is no reason that this market will not grow in Pakistan. Thank you very much. And with that, I'll request Mr. Wasim Akram, the fund manager at NIT, to tell us about NIT Pakistan Gateway ETF. And just to mention that NIT ETF has at present an asset under management of over rupees 50 million. And that's just the starting of it. And definitely it will increase like other ETF as well. So Mr. Wasim Akram, it's over to you. Thank you. Thank you, Hassan. सबसे पहले I wish to thank SCCP and PSX for arranging this seminar/webinar on ETFs. बहुत सारी बातें already हो चुकी हैं. किसी भी developed market में ETFs are one of the biggest products in terms of market capitalization and number of subscribers. I would like to start with a little bit of introduction about NIT. I'm sure most of you are aware of most of the things. सबसे पहली AMC in Pakistan was formed in 1962. I'm happy to report to you all that recently we have been rated AM1 by BIS, which is the highest rating of AMCs. Our total assets under management, including SMAs, are currently around 150 billion, and we have an investor base of around 55,000 users currently. हमारा 27 branches का network है, plus an investor facilitation center, and various branches of banks are authorized to sell our units. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है. हसन ने बहुत अच्छा बेसिक्स एक्सप्लेन भी कर दिए कि why ETFs are an important product as far as the capital markets is concerned. I would just like to highlight a few differences that ETFs have in comparison to a normal mutual fund. So there are many benefits that ETFs provide users, which are the same as you get when you buy a normal mutual fund. But as has been mentioned before as well, that at a much lower cost as compared to a conventional mutual fund. So you get a diversified portfolio in an ETF, similar to what you get out of a mutual fund investment. But one key advantage of ETFs is that they are traded on the stock exchange. So in that they are much liquid as compared to a mutual fund, where you have to go to a issuer, the AMC,
for the issuance and redemption of mutual funds. Generally, the management fee of an ETF is lower as compared to a normal mutual fund. And obviously, that's because on the part of the AMC, the costs are lower because it's more of a passive investment style as compared to a conventional mutual fund, which has an active management style. Plus, in terms of transparency, you can see the net asset value during trading hours continuously in terms of an ETF, while for a mutual fund, you get to know the net asset value at the day end when the AMC actually issues these prices. The global picture already Hassan ne bada acha explain kar diya. This one slide that I wanted to focus on. This is from an international source called Statista.com, and they have done a survey which basically outlines the reasons why market participants believe that ETF growth drive kahan se hogi going forward. उनमें से जो ये फैक्टर्स लिस्टेड है उनमें से बहुत सारे फैक्टर्स I think they're very interested in terms of not only what kind of products are needed for ETFs in the future, but also कई ऐसी चीजें जो already हमारे पास होने की वजह से I believe that we are right at the start of this growth phase for this product. So I'll actually start with the bottom. So a large number of respondents believe that education and understanding of ETFs is one of the key factors that will drive growth of ETFs going forward. As far as the Pakistan market is concerned, I think hum us aggressively, thanks to the regulator, thanks to PSX, hum log sab mil ke we are striving towards increasing the awareness and education about ETFs. And this will probably be one of the key factors which can drive the growth of ETFs in Pakistan going forward. Second very interesting factor is the second last, which you see in the chart, is that 34% of respondents believe that regulation has a lot of role to play in terms of ETFs growth in any market. Currently, as we have seen throughout the launch of the product as well, regulatory side से हमें बहुत support है. So that is probably going to be another reason that ETFs will probably be a very high growing capital market product in the Pakistan market going forward. Innovative products, जैसा कि mention भी Farooq साहब ने किया कि innovative products obviously play a key role in terms of increasing customer awareness and interest in this product, and we are working on innovative products going forward, and I'm sure the other market participants are doing exactly the same. NIT ETF के बारे में थोड़ा सा क्राइटेरिया हमने जब इनिशियली ये प्रोडक्ट डिजाइन की तो it was basically for a starting point, obviously it was very it made a lot of sense to have a product which has a very simple criteria जो कि हर किसी को आसानी से समझ आए. तो मैं वो जो criteria उसको बहुत simply आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि basically we take the top market capitalization stocks of the list which are part of the KSE 100 index and select as many stocks as required to reach a 50% total market capitalization of the KSE 100 index. So when you buy NIT Pakistan Gateway ETF, at all times you have at least 50% exposure in terms of free float market capitalization to the KSE 100 index. We believe that this criteria may although it's easy to understand, and number two, it gives you a very wide exposure to the market at large and the country's economy as overall, because almost all major sectors of the economy are represented in this selection, which you will also see in the next slide. थोड़ा सा जो I think जब ये product नई launch हुई थी तो obviously
हमारे लिए भी एक पहला एक्सपीरियंस था, तो देयर वाज ऑलवेज दिस एप्रीहेंशन अबाउट कि ये आगे परफॉर्मेंस किस तरह से होगी। इसलिए अब चूंकि हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च हुए हुए तकरीबन 10 मंथ्स के करीब हो चुके हैं, तो वी आर इन अ पोजीशन कि एक जनरलाइज आपको हम उसकी परफॉर्मेंस के बारे में ना सिर्फ बता सके बल्कि ये बता सकें कि व्हाई दिस प्रोडक्ट is good in comparison to other avenues available to you. For somebody who is looking for ease of investment, for low cost investment products, this is a very easy to buy and hold kind of a product for any investor. So, मिसाल के तौर पे ये हम एक year to date return जो जुलाई 1 से किया, तो NIT PGI का रिटर्न जो है वो अराउंड 26% है अप टू जनवरी 15। In comparison, KSE 100 index जो है उसका 33% का रिटर्न है, which means कि although कि हमारी 7% की अंडर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू KSE 100 इंडेक्स, बट हमने ये जो परफॉर्मेंस अचीव की है ये 14 स्टॉक्स के एक्सपोजर से अचीव की। जबकि अगर आप वो 7% एडिशनल रिटर्न जो कि KSE 100 इंडेक्स ने दिया है, तो you would have had to invest in 100 stocks for that. So for a passive product जिसके अंदर लो कॉस्ट भी है, you can just go ahead and buy it like a normal stock out of the exchange. So this is a very good product in terms of capturing the essence of the market as a whole. So just buy one ETF और जो मार्केट की ग्रोथ है उसका आप 2/3 just by investing in NIT Pakistan Gateway ETF कैप्चर कर लेते हैं with a low investment. ये 14 स्टॉक्स हैं जो अभी करंटली पार्ट हैं हमारे इंडेक्स का। बेसिकली ऑल ब्लू चिप स्टॉक्स in all main sectors are represented, and this is the beauty of the selection process because जो highest market capitalization से जब आप select करने के लिए जाते हैं तो you have the surety कि only the most blue chip of the blue chip stocks get selected in the criteria. एक ETF 10 रुपीज फेस वैल्यू का आप उसको मार्केट से खरीदते हैं, आपको 6 मेजर सेक्टर्स के अंदर एक्सपोजर मिलता है और सारे जो भी ब्लू चिप ग्रोथ ड्राइवर्स हैं ऑफ द स्टॉक मार्केट उन सब में एक्सपोजर just through exposure in one ETF, that is NIT Pakistan Gateway ETF. I think the limited time to say, I would just conclude by saying that हमारी पूरी टीम in place है. Anyone who wishes to invest can simply contact us on this information FBGETF@nit.com.pk. हमारे जो टोल फ्री हेल्पलाइन है उस पर कॉल कर सकते हैं एंड आपको जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंक्लूडिंग अगर आपको अकाउंट ओपनिंग ब्रोकरेज अकाउंट ओपनिंग व्हिच इज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोडक्ट, उसके बारे में भी किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो आवर स्टाफ इज अवेलेबल टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ हेल्प यू नीड. With that I conclude and thank you all very much for this opportunity. Thank you. Thank you, Asim Saab. I have the timer running with me, so you have done a very comprehensive discussion within 10 minutes. And आपने बड़ा ETF के बारे में जनरल भी बहुत अच्छा बताया and also explained NITI very well. एक वैसे general information I would like to share with even the fund managers, those who certainly know, and with investors. So someone looking to develop a desired risk and return strategy, they can invest a certain portion in a passive ETF like NIT or the other UBL or Al Mizan or National Bank, and few percent of their holdings in some active stocks, and they can have a desired strategy actually built around that. So thank you very much, Wasim Saab. Now we'll request Mr. Zishan Kudus, is the Chief Business Development Officer of UBL Funds, to share with us the story of UBL Pakistan Enterprise ETF. Currently, around 49 million rupees, a little over 49 million rupees is the asset under management of UBL Fund. So Zishan Saab, over to you.
Thank you, Commissioner Saab. Thank you, Hassan, Raida, Assalamualaikum ji. I have 10 minutes और जो मैं लेके आया था उसमें से काफी चीजें तो कवर हो गई हैं. So I'll keep it crisp and जो चीजें नहीं डिस्कस हुई I'll try and focus that. ये ETF अभी हसन कह रहे थे कि it was launched in March last year, एक साल होने लगा है. Not many of you would know कि actually the first time मैंने ETF सुना with my former employer in Pakistan was 2006. Commissioner साहब knows about it. यासर ने ये जिक्र किया होगा कि 2006 में पहली दफा हमने सोचा कि ETF पाकिस्तानी मार्केट में होना चाहिए. And we worked for good maybe 12 months to launch an ETF. And eventually फिर वो हमें शेल्फ पे रखना पड़ा. And ये जब इस दफा ड्राइव शुरू हुई और SEC बहुत फोर्टकमिंग था इसमें, कमिश्नर साहब एंड द एंटायर SEC टीम, हसन एंड हिज टीम, तो फाइनली ये लॉन्च हो गया. और हमारी एक्चुअली जब ये लॉन्च हुआ तो कुछ जरा हमें ग्लोबल प्रैक्टिस जैसे कमिश्नर साहब हसन कह रहे थे, कुछ लर्निंग्स हुई. लर्निंग ये हुई कि व्हाई, आई मीन व्हाट्स इन इट फॉर यू, फॉर एग्जांपल व्हाई वुड यू गो एंड बाय ETF? आज आपके पास शेयर्स अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप वो जाके खरीद सकते हैं. तो आपके लिए ETF की कोई पिच होगी तो आप जाहिर है उसको खरीदेंगे. तो जो एक चीज समझ आई हमें वो ये है कि आप किसी भी ETF के ऊपर, किसी भी इंडेक्स के ऊपर ETF बनाएं, दैट इंडेक्स हैज टू बी रियली रियली लिक्विड. वो होना ऐसे चाहिए जैसे आप कोई शेयर बेचें और उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट जितनी थोड़ी होती है, अगर उससे ज्यादा आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट हो आपके अंडरलाइंग इंडेक्स की, तो फिर वो ETF में वॉल्यूम्स भी नहीं होते और स्प्रेड, जैसे भी कमिश्नर साहब कह रहे थे कि वो स्प्रेड्स बढ़ने लगते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो ETFs हैं उसमें स्प्रेड्स बहुत थोड़े, बट द पॉइंट इज स्प्रेड्स अभी भी हैं. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ETF के ETF की जो मार्केट की ट्रेडिंग होती है उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है विच इज INAV, विच इज द इंडिकेटिव एनएवी. यानी उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर इन शेयर्स की प्राइस क्या है, मिसाल के तौर पे 10 रुपए या 100 रुपए, और ETF आपको मार्केट में मिल रहा है 99.5 के ऊपर. डिफरेंस बिटवीन द INAV and the actual price is the spread, which is your earning. So that is the opportunity available to all of you कि जब आप ETF में काम करेंगे तो इफेक्टिवली आप अंडरलाइन में काम करें. तो आप अंडरलाइन की चीज 100 रुपए की मिल रही है और उसी का ETF अगर आपको 99.5 रुपीज में मिल रहा है, तो यू आर एक्चुअली मेकिंग 50 बिप्स आउट ऑफ इट, एज लॉन्ग एज दैट ETF इज लिक्विड. जितनी लिक्विडिटी ज्यादा होगी उतना स्प्रेड जरूर कम होगा, लेकिन फिर भी होगा. That's the earning that you make out of it. Brief about UBL funds. I mean, most of you would know, but we were founded in 2001. 80,000 से ज़्यादा हमारा clientele है. We are managing over 90 billion. We are the joint first with NIT to launch Pakistan's first ETF. तो जब हम अपना ETF कर रहे थे और हमारा काफी डिस्कशन और टाइम लगा इस चीज में कि इंडेक्स होना क्या चाहिए. We went back and forth with the index, and eventually the theme behind our index was कि दो चीजें थी उसमें. एक ये थी कि exposure to Pakistani businesses, excluding the commodity thing, which means oil and gas largely, वो होना चाहिए, और प्लस वो इतना लिक्विड होना चाहिए कि उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करे फिर हायर वॉल्यूम्स के अंदर और लोअर इम्पैक्ट कॉस्ट या ट्रैकिंग एरर की. तो जो हमारा इंडेक्स है वो मैं आपको एक मेथोडोलॉजी से वेरी क्विकली मैं दिखा के देना. ओके, सो दिस इज हाउ वी डू आवर इंडेक्स. सो UBL पाकिस्तान ETF का जो अंडरलाइन इंडेक्स है उसमें मैक्सिमम स्टॉक्स हो सकते हैं 9 स्टॉक्स. उसकी वजह ये है कि हमारा ये ख्याल था कि नंबर ऑफ शेयर्स आप जितने बढ़ाते रहेंगे ऑटोमेटिकली वो लिक्विडिटी और इम्पैक्ट कॉस्ट की जो है वो बढ़ती रहेगी, और फिर वो जो पर्पस ऑफ ETF है वो शायद उस तरीके से ना हो. सो वी थॉट 9 should be the cap. The way we select it is कि top 25 कंपनीज हम उठाते हैं in terms of free float market cap and 2 years volume, और उसमें से 9 कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं. Further, थोड़ी diversification के लिए what we have done is कि the maximum exposure to any stock can be 16%. The minimum has to be 3.5%. ये 9 stocks हैं, oil and gas उसमें से निकल गया,
So Pakistani businesses, top 9 companies in terms of free float market cap and volume. Exposure to a single stock 16%, minimum exposure to a stock 3.5%, और हर 3 महीने के बाद इसको क्वार्टरली इसी फॉर्मूले को रीबैलेंस करते हैं. तो जिस तरह MSCI अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करता है, वो हम काम we do it every 6 months. तो हर 6 महीने के बाद we'll reconstitute the index, which means कि छठे महीने पे जाके हम based on the methodology रीरन करेंगे. हो सकता है कुछ स्टॉक्स ऐड हो जाएं, कुछ स्टॉक्स उसमें से कम हो जाएं. So as we speak, 15 January की पोजीशन आपको सामने दिख रही होगी. So this is the constituents of our ETF. So HPL is about 15.5%, Agro is 14%, Lucky is 13%. हो सकता है इसमें से कभी कोई 16% से ज्यादा हो जाए because of the market movements. तो जब हम quarterly rebalancing कर रहे होंगे तो we'll adjust that. So this is the portfolio. So this is just a small comparison. So हमने इसको रीरन किया December 17 से और उसको मैप किया versus KC 100. So इसकी आउट परफॉर्मेंस है, बट उससे ज्यादा अहम ये है कि इसका जो कोरिलेशन है KC 100 के साथ, that is about 95%. So by buying an ETF of those 9 stocks, you are getting a 94-95% exposure of KC 100. देखिए आपके लिए जो मुझे लगता है पिच बनती है वो ये बनती है कि when you become a market maker or authorized participant, तो जब आप अपने clients को ETF units बेचते हैं, so and Hasan please correct me if I'm wrong, कि एक तो जो आपको brokerage मिलता है shares खरीदने बेचने का, वो तो naturally वो है ही, but on top of it you're making a spread out of every buy and sell. So for example, theoretically अगर कोई single stock का ETF हो और वो उस स्टॉक की कीमत इस वक्त से 3:15 अगर मार्केट खुली हो और 100 रुपए हो, और अगर आप वो किसी से खरीद रहे हो एट 99.99, so making a money out of it plus the brokerage. So ETFs gives you the opportunity कि आप 9 स्टॉक्स इन आवर केस, या जैसे अभी वसीम अपना बता रहे थे और बाकी पार्टिसिपेंट बताएंगे, वो 9 स्टॉक्स इन अ पर्टिकुलर रेशो थ्रू वन ETF यूनिट अगर बाय एंड सेल कर रहे हो, और अगर ये जो स्प्रेड है बिटवीन द करंट प्राइस एंड द ट्रेडेड प्राइस ऑफ द ETF, वो अगर आप बना रहे हो, सो यू एक्चुअली थोड़ी सी आपकी जो इनकम है वो दैट्स, जब हसन कहते हैं कि 30% ऑफ द टोटल इंडियंस आर ETF, so why are people interested? People are interested because the ETFs are liquid, they can sell it anytime they want, जब चाहिए वो मिल जाएगा, वो इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत थोड़ी है, और आप लोग जो है उसमें पैसे और थोड़े से अर्न कर रहे हो. So this is probably the idea. Plus कमिश्नर साहब, with your permission, अभी आप ये कह रहे थे कि 5th time in a row मार्केट गिर गई. So मैं actually while you were saying, मैं ये सोचा था कि आज सुबह मार्केट एक्चुअली 250-300 पॉइंट शायद ऊपर गई. So if you had ETF, you would have sold it at a higher price, और फिर जब मार्केट नीचे आ गई थी तो you would have bought it again, making an arbitrage. So this ETF unit would provide you an opportunity which a conventional mutual fund does not provide, because वो जो हमारा typical equity fund होता है वो आपको शाम की प्राइस के ऊपर एंट्री एक्सेस देता है, whereas ETF का जो यूनिट होता है वो आप, because it trades like a stock in a market, तो आप ऊपर की NAV पे बेच के और दोबारा थोड़ी देर बाद जब मार्केट नीचे हो तो उस NAV पे वापस खरीद सकते हैं. 3 तरीके हैं आपके पास ये करने के हमारे साथ. एक तो ये है कि आप नॉर्मल मार्केट में बाय सेल करें. दूसरा एक तरीका ये है कि आप यू बिकम आवर ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट, जिसका प्रोसेस इज फेयरली सिंपल. यू जस्ट नीड टू साइन शॉर्ट एग्रीमेंट विद अस, और उसके बाद आप फंड के पास आके, यानी मेरे पास आके या एमसी के पास आके यूनिट्स ले भी सकते हैं और उसको सरेंडर करके अपना पोर्टफोलियो वापस ले सकते हैं. So if you have a request from the client, आप हमसे वो यूनिट लेके आगे उनको दे सकते हैं, वाइस वर्सा. और तीसरा तरीका ये है कि आप साथ में मार्केट मेकर बन जाएं, which would essentially means कि अब आपको मार्केट में लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करने की आपकी रिस्पांसिबिलिटी होगी. वो आपका एग्रीमेंट PSX के साथ होता है, जैसे अभी हसन कह रहे थे कि एक नया मार्केट मेकर ऐड हुआ. So this is the comparison. ये this is okay. So ये नसीम बात कर चुके हैं इसके ऊपर.
but I would still. So this is a comparison of a typical ETF and a mutual fund. आप सब वाकई से normal equity fund जो होता है, normal mutual fund में आपको day end की NAV या price या valuation जो भी आप कहते हैं वो मिलती है, चाहे आप entry कर रहे हो या exit कर रहे हो. Whereas in case of an ETF, आप एक particular point in time पे when you decide it's at 315 to buy or sell, क्योंकि आपका view है कि वहाँ से market move कर जाएगी, so you can do that through ETF. Why would you buy and sell ETF and not the underlying? उसकी वजह मैंने अर्ज की कि आपके पास एक opportunity होती है, एक spread है उन shares की price का और ETF की price का. Market जितनी liquid होती है या index जितना liquid होता है, वो spread उतना ही कम होता है, लेकिन वो exist करता है. So you know you're making money out of it. ETFs के देखिए ETFs की जो success है और I think जो हमारे start हुआ है पाकिस्तान में ETFs का, वो index are liquid. So I would talk about UBL कि हमारा जो index है उसमें जैसे मैंने कहा 9 stocks हैं and these are liquid stocks. How do you judge that कि वो index या underlying liquid है या नहीं है? उसका parameter is tracking error. Tracking error है fund का return और index का return. वो जितना लो होगा इतना मतलब है फंड का रिटर्न और इंडेक्स का रिटर्न बिल्कुल रेप्लिकेट कर रहा है और साथ में उसकी इंपैक्ट कॉस्ट में मार्केट. So if you have the opportunity कि आप वो ETF का यूनिट मार्केट से खरीदें, मुझे वापस करें और अंडरलाइंग वापस ले जाएं और उस अंडरलाइंग को भी आप बेच सकें, तो वो जितने अंडरलाइंग लिक्विड होंगे उतना जो है वो आपके लिए आसान होगा और आपकी इंपैक्ट कॉस्ट कम होगी. So अभी हसन ने ऑलरेडी बात कर ली कि इसमें these are the passive funds. So when you decide to invest, अभी 4 ETFs हैं, कमिश्नर साहब अर्ज कर रहे थे कि they are many in the pipeline, so इंशाल्लाह और भी होंगे. आपको या आपके क्लाइंट्स को कौन से चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए you need to see कि आप इंडेक्स कौन सा है. So उस इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, वो कितना लिक्विड है, उसकी इंपैक्ट कॉस्ट क्या है, एंड देन जो भी आपका क्लाइंट है. So there may be clients जिनको ऑयल एंड गैस के एक्सपोजर चाहिए होता है, but there are clients जो किसी और तरीके से सोच रहे होते हैं. So you know there are opportunities और आपके पास ये विंडो अवेलेबल है कि आप हमारे साथ एक छोटा सा एग्रीमेंट साइन करें, बिकम आवर ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट. एट मिनिमम मेरी रिक्वेस्ट ये आप सब लोगों से, अगर आप इसको आपको ठीक लगता है कि जो आप लोग ये ऑनलाइन पोर्टल्स है उसमें आप अगर हमारे ETFs ऐड करना शुरू कर दें. देयर आर फ्यू ब्रोकरेज हाउसेस जिन्होंने हमारे ETFs को ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, बट आई थिंक और भी काम करने की जरूरत है. So if our stock या उसका सिंबल जैसे UBL पाकिस्तान ETF है, उसका सिंबल अगर एडेड है, so your customer can do an online transaction, buy and sell ETF like they do with shares. So एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, and I think हसन टाइम हो गया है, I have couple of minutes. Thank you very much, Zishan. Time थोड़ा सा Thank you, ऊपर हुआ है, sir. but you have touched very important concepts about ETF. If you allow me, I just need 30 seconds more. Please continue. Right. So ये जो इंडेक्स में भी आपको दिखा रहा था, इसकी जो डिविडेंड यील्ड हमारी रिसर्च टीम कैलकुलेट करती है. So for example, if you were to buy our ETF unit, so the ETF unit उसका जो अंडरलाइन है, जाहिर है वो शेयर्स हैं, so वो उसका जो डिविडेंड यील्ड है that is about 7.3%. ये 15 जनवरी पे कैलकुलेटेड है और उसकी अर्निंग्स यील्ड about 14%. Obviously, it will keep on changing, but I think these are the factors which will help you decide which ETFs to buy, when to buy, etc., etc. I think that's it, Hassan. If you. जी, thank you very much, Zishan. आपने बड़ा अच्छा story of ETF बताया. And good to see finally कि ये dream of ETF came true after about 14 years of initial thoughts. So not bad. तो एक बाकी आपने important concepts को touch किया, especially for our brokers, track holders हैं, and importance of relationship between ETF and the underlying index. और INAV की भी आपने बात की, तो ये transparency is an edge over passive mutual funds or closed-ended funds, और certainly market makers और authorized participants के लिए brokerage commission तो है ही. In addition, there is an arbitrage opportunity, and ये arbitrage का जो mechanism है, इससे price of ETF
एंड आई नैव जो उसकी वैल्यू है ये काफ़ी क्लोजली मैच होती रहती है दुनिया भर में इसी तरीके से ये होता है और ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मार्केट मेकर्स और एपीज के पास होती है और सर्टनली योर फॉर एग्जांपल योर स्ट्रेटजी has a specific view on oil and gas sector. The other ETF had a different view. So investors has this choice. Investor can choose based on his own outlook of oil and gas to which ETF they want to invest in. So another important thing that you mentioned that during the day in and out आप कर सकते हैं in an ETF a passive portfolio, whereas in case of a mutual fund ये डे एंड की प्राइसिंग आपको मिलती है so I don't want to eat time from the other presenters, so I would request Mohammad Asad Saab, CIO of Al Mizan Investment, to elaborate and talk about the first Sharia ETF in Pakistan. The asset under management of Al Mizan is catching up, and presently it's about over 39 million Pak rupees. Thank you very much. Asad Saab, over to you, please. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, SCCP team, Stock Exchange team, and the participants. Basically, first of all, we will discuss a couple of slides about Al Mizan Investment Management, which is the largest private sector Islamic asset management company in Pakistan. And it has a track record of over 26 years of fund management. We were established in 1995. And since then, we have launched more than 20 funds and similar type of plans in these years. We got the highest ever rating in asset management company, which is AM1, and we maintained that rating over the years. Basically, Al Mizan is the subsidiary of Mizan Bank, which is the premier Islamic bank in Pakistan. And we are also managing largest Sharia compliant equity fund and largest voluntary pension fund in Pakistan. Product mix में we always remain pioneer in Islamic and other products. और उसमें we have equity funds, balance fund, Islamic fixed income funds, tracker fund, and even we are the only one who have gold fund in Pakistan. And lately, last year on October 6, we launched first Islamic Sharia compliant ETF in Pakistan. Smriti, launching May, I'm thankful to SCCP, to Stock Exchange, our management, Mizan Bank, and particularly Sharia advisors. और Sharia advisors में तकी उस्मानी साहब and team, Dr. Imran Ashraf Usmani and Sheikh Isam, इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है हमारे इसमें फंड की एडवाइजरी और गाइडेंस में और ETF की लॉन्च में. ग्लोबल ट्रेंड्स के ऊपर ज्यादा बात हो गई है, बस ब्रीफली मैं बता रहा हूँ. इट इज अ कॉमन कंसेप्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड रीजनल कंट्रीज. पाकिस्तान में लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ और इसका साइज जो है मार्केट इट्स ओवर 8 ट्रिलियन ग्लोबली. और पाकिस्तान में हमने देखा है कि पहले ये 4 ETFs लॉन्च हुए
और आइंदा भी हमें लग रहा है कि इसकी वजह से रास्ता खुल गया है और इंशाल्लाह ये ट्रेंड जो है इट विल इंक्रीज। अब हम आते हैं पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरफ कि इसमें व्हाट आर द फीचर्स। मैं इसकी मैकेनिज्म पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा, खासतौर पर ये बिड ऑफर एपी क्योंकि ऑलरेडी ईशान इसके बारे में ब्रीफ कर चुके हैं, लेकिन एक पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ब्रोकर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन्वेस्टर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कॉमनली उनको चीजें पता चले कि इसमें फर्क क्या है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस कोई है। ये समझते हैं कि शायद ETF इज वेरी कोई कॉम्प्लिकेटेड नेम, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट और कोई बहुत मुश्किल चीज है। सबसे पहले इट्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ शरिया कंप्लायंट सिक्योरिटीज। इसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकता है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपके ओवर 500 शेयर्स ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पर, इसी तरह ETF भी ट्रेड होता है। इसकी प्राइस जो है इट्स डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई। ETF में डेफिनेटली अलमिजान की प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट टीम इज अवेलेबल जो इसको मैनेज कर रही है। इसकी पॉलिसी और अंडरलाइंग इंडेक्स जो है आपको डिटेल्स किसी भी AP अलमिजान की वेबसाइट से आपको इसके डॉक्यूमेंट्स, शरिया एडवाइजर्स की डिटेल्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये तमाम हमारी वेबसाइट से, स्टॉक एक्सचेंज से आप इजीली कोई भी इन्वेस्टर दे कैन एक्सेस। इसमें सवाल ये कि ETF में ये कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं कि मीज़ान ने 2009 में जब सिर्फ एक इंडेक्स होता था KSE 100 इंडेक्स और इसके अलावा कन्वेंशनल इंडेक्स थे, उसके बाद एक इस्लामिक इंडेक्स की जरूरत महसूस की और इसमें 2009 में मीज़ान ने स्टॉक एक्सचेंज की कोलैबोरेशन के साथ KMI KSE मीज़ान इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया और इसको 11 साल हो गए और इट्स ओवर 11 ईयर हिस्ट्री इट रिमेन कम्पिटिटिव और मोस्ट ऑफ द इयर्स इसकी परफॉर्मेंस इवन KSE 100 इंडेक्स से ज्यादा रही है। इसी सिलसिले में हमने यहाँ ETF भी, इसमें 30 कॉन्स्टिट्यूएंट जो KMI के थे उसमें से 12 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हमने सिलेक्ट की। उसका क्राइटेरिया, उसमें बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन को सबसे पहले कंसीडर रखा क्योंकि लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप मार्केट में खरीदने जाएं या बेचने जाएं तो पता चला आपको जो है ये ETF मिल नहीं रहा या इजीली सेल नहीं हो रहा। तो पहले हमने ये चीज मद्देनजर रखी कि उसमें लिक्विडिटी मौजूद हो, इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो। इसमें बेसिकली हमने एक मार्केट कैपिटलाइजेशन और दूसरा जो ट्रेडेड वैल्यू, ये 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और लास्ट 1 ईयर में इन शेयर्स की ट्रेडेड वैल्यू क्या रही, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा हमने 12 स्लिप सेलेक्ट किए जो रिलेटिवली लिक्विड भी हैं और जिनकी इम्पैक्ट कॉस्ट भी काफी कम है। इसमें फिर एक स्क्रिप्ट में ये भी कि बहुत ज्यादा वेट ना हो, उसमें एक कैप रखा 15% का एक स्क्रिप्ट का, फ्लोर रखा हमने कोई 3.5% का और एक सेक्टर का जो वेट है वो हमने कैप कर दिया 25% और टोटल हमने इसमें ये आपको वेबसाइट पर ये इस पर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि टोटल हमने ये 12 क्वेश्चंस रखे हैं। इसमें कोई तकरीबन 7 एक्टिव सेक्टर्स को हमने रखा है जिसमें हमने खास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि ये पोस्ट कोविड इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफी इंसेंटिव्स दिए और रिवाइवल हुआ और इसमें परफॉर्मेंस भी दी है। फिर हमने फार्मास्यूटिकल कंपनी को इस कॉन्स्टिट्यूएंट में ऐड किया है, बिसाइड्स ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। इसके अलावा हमने फर्टिलाइजर सेक्टर को रखा, इंजीनियरिंग को रखा और ये वनस्पति एंड लाइट इंडस्ट्रीज को रखा है। तो ये आपको काफी डाइवर्सिफाइड पूल इन्वेस्टर्स को मिलेगा जिससे, और ये उसकी कंपनीज हैं, एक नजर उसको भी देख लें। इसमें अच्छी टॉप पाकिस्तान की कैपिटलाइज और लिक्विड कंपनीज जिसमें अंदर दक्की, एंग्रो, OGDC, PSO, सर्ल, DG, एंग्रो फर्टिलाइजर, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ये मेजर कंपनीज हैं। इसमें एक और सवाल ये है कि इसको इन 12 कंपनीज को जब हमने सिलेक्ट किया, इस पर काफी टाइम लगा, हमने एक्सचेंज के साथ भी डिस्कस किया, फिर इसमें बैक ट्रैकिंग की 10 इयर्स की कि ये KSE 100 के मुकाबले में, KMI 30 के मुकाबले में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है।
तो बेसिकली हमने उस ट्रैक की बेसिस पर, बैक ट्रैक की बेसिस पर इसकी परफॉर्मेंस जो पिछले 10 साल की इसको अगर बैक ट्रैक किया तो इसकी परफॉर्मेंस, इसका रिटर्न एनुअलाइज्ड 20% से ऊपर रहा, जबकि इसी पीरियड में KMI 30 इंडेक्स का रिटर्न 14% रहा है और KSE 100 का रिटर्न जो है वो कोई तकरीबन 13.78 रहा। अभी ये बहुत कलील मुद्दत है, तीन महीने और कोई तकरीबन 20 दिन हुए। अक्टूबर 6, 2020 को वी लॉन्च ये ETF मीज़ान का, और इसमें बहुत थोड़े पीरियड में आप देखेंगे इसका जो रिटर्न है वो कोई तकरीबन 11.2% है, जबकि इसका बेंचमार्क का रिटर्न 10.3% है। ट्रेडेड वैल्यू के हिसाब से देखें, ये मैंने पूरा सिंस इंसेप्शन जो अक्टूबर 6 से इसको ग्राफ किया है, इसमें ये वॉल्यूम अब बतदरीज बेहतर होना शुरू हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह अवेयरनेस बढ़ रही है, स्टॉक एक्सचेंज और SEC पे सेशन कंडक्ट करवा रहा है, तो आप देखेंगे वॉल्यूम में इजाफा शुरू हुआ है और अब डेली इसका जो वॉल्यूम है जो पहले काफी लो था, 36,000 शेयर्स एवरेज ट्रेडेड इसका वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, जबकि वैल्यू के हिसाब से इट्स हुआ ₹400,000। सेक्टर्स का मैंने जैसे जिक्र किया कि ये बेसिकली हमने एक चीज इसमें रखी, जो मैंने 7 सेक्टर्स आपको पहले भी बताए थे, ये काफी डाइवर्सिफाइड है। आप राइट साइड पर जो 4th ये बार देख रहे हैं, इसमें काफी फेयरली डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू अदर्स हमने रखी कि इसमें बेसिकली डेप्थ हो, लिक्विडिटी हो, लेस वॉलेटाइल हो, और इसके अलावा इसमें सेक्टर पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन काफी डाइवर्सिफाइड हो। बेसिकली एक इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, इसकी डिटेल्स में शेयर की कि इट्स ट्रेडेड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकता है, और दूसरी इसमें सबसे आसान जो और लोगों की फहम के लिए ये चीज समझनी जरूरी है कि आप एक शेयर जब खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल PSO खरीदा आपने, OGDC खरीदा, एंग्लो खरीदा, आप एक शेयर के ऊपर बिड एंड आस्क स्प्रेड होता है, उस पर इम्पैक्ट कॉस्ट होती है, उसका कमीशन होता है, हर शेयर का अलग अलग कमीशन, उसमें टाइम लगता है परचेज और सेल करने में। यहाँ आपको वन गो में 12 स्क्रिप्ट्स विद ओनली जो एक स्क्रिप्ट पर आपकी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, और उसमें 12 स्क्रिप्ट्स का जो है एक्सपोजर, यानी पूरे इंडेक्स का एक्सपोजर जो तकरीबन 60 से 70% KMI इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, आप उसका एक्सपोजर इसके थ्रू ले सकते हैं। और मार्केट की वॉलेटिलिटी, खास तौर पर उस पीरियड में अगर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गई या बहुत ज्यादा ऊपर हो गई, इसमें आप फौरन मुनाफा भी कमा सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। ये आपके लिए इसमें सहूलत मौजूद है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ दी जो आपके एवेन्यूज अवेलेबल है। यस, एक और इसका है प्राइस एंड परफॉर्मेंस, मैंने आपको बताई दिया कि उसका रिटर्न तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये डाटा पोर्टल है, इसकी डिटेल मौजूद है, आप वेबसाइट पर मौजूद है, इस किस्म का आपको बोर्ड नजर आएगा। आप जब वेबसाइट पर जाएंगे, आप किसी भी ब्रोकर से, ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट से, और अल मीज़ान की वेबसाइट या इसकी डिटेल्स आप चाहें तो उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में परचेज करने के लिए। और नॉर्मली उसी तरीके से जैसे आप अपना अकाउंट ब्रोकर के पास खोलते हैं, वैसे ही आप ETF के लिए अपना अकाउंट खोलना पड़े, और उसी तरीके से KYC की रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए आप नॉर्मल शेयर्स की तरफ परचेज और सेल कर सकते हैं। ये बेसिकली ब्रीफ समरी, इसमें मीज़ान पाकिस्तान ETF, इसका जो टिकर है MZNP-ETF, और फीस जो है मैनेजमेंट फीस इट्स क्वाइट लो कंपेयर टू ये जो रेस्ट ऑफ द फंड्स है, सिर्फ 0.5% रखी हुई है। और इसमें शरिया एडवाइजर्स जो है हमारे डॉक्टर इमरान उस्मानी हैं। बेसिकली मैंने आपको जैसा बताया कि आप अगर SMS करेंगे और टू इन्वेस्ट 6655 पर मीज़ान की वेबसाइट पर जाएंगे, उसकी डिटेल्स मैंने थोड़ी सी शेयर की है। हलाल 0800 हलाल पर आप डायल करेंगे, आप इसमें फ्रॉम दी इंफॉर्मेशन पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ये बेसिकली रिस्क क्लॉज है, SEC की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली हायर प्रोडक्ट है, वो हमने शेयर की है। और इसमें बेसिकली लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई ETF के लिए इस वक्त क्या साजगार हालात हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो पिछले कोई तकरीबन 7 माह में सिंस 30 जून 30% से ऊपर रैली की है, और हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अगर देखें
So exports is on the rising side after a long time. Current account is in surplus for the past 6 months. करेंसी जो है जो हमारी वॉलेटाइल रही थी लास्ट 3 इयर्स वो स्टेबलाइज हुई है और एक्सचेंज रेट 5% एप्रिसिएशन हुई है 168 से इट्स होवरिंग इन बिटवीन 160 एंड 61. इंटरेस्ट रेट्स हमारे जो है वो नीचे आए हैं 13.25% हो गए थे एक साल पहले और आज वो है थैंक्स गॉड 7% हैं और इसमें अभी रिसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें भी 7% पर मेंटेन हुए हैं. इसके अलावा आपकी रेमिटेंस रॉबस्ट रही है, जीडीपी इट्स ऑन द राइजिंग साइड. और लास्टली मैं अपना इस पर एक शेयर है इसमें कि जो पाकिस्तान के हालात और स्टॉक एक्सचेंज की अक्कासी करेगा. खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख. तो यही इंशाल्लाह पाकिस्तान एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिंदाबाद, पाकिस्तान ETF पाइंदाबाद. थैंक यू. Thank you very much, Asad Saab. मशरिक से बढ़ते हुए सूरज को जरा देख. Very good, nice one. And actually, it's heartening to see कि जो शरिया सर्विस प्रोवाइडर्स हैं पाकिस्तान के, they are not behind at all. और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा तमाम ऑडियंस को, इंक्लूडिंग जो हमारे ब्रोकर्स फैमिली है, कि मीज़ान को एक एडिशनल चैलेंज दरपेश था for setting up the ETF, which was the risk management for a market maker, कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए. ये एडिशनल चैलेंज था और जिसकी वजह से उनको थोड़ा और टाइम लगा to launch the ETF, and very well done. और इसमें SCCP की भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही और पार्टिसिपेशन रही और finally we have a market maker and we have a system with Mizan that provides the risk management for market maker in an Islamic Sharia way. और थैंक यू असद साहब, काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था, इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक पिक्चर और अपडेटिंग माई इंफॉर्मेशन एज वेल कि बाय एंड ऑफ 2020 $7.9 ट्रिलियन AUM है ग्लोबल ETFs का, और दुनिया भर में शरिया ETFs की डिमांड भी है और शरिया ETFs पे काम भी हो रहा है. विद दैट आई रिक्वेस्ट मिस्टर सजाद अनवर, CIO NBP फंड्स, वो NBP का जो ETF है उसके बारे में हमें बताएं. और जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर ऑडियंस, अबाउट 63 मिलियन रुपीस हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट में इस वक्त NBP पाकिस्तान ग्रोथ ETF के. थैंक यू. Assalamu alaikum to everybody. Farooq Saab, thank you very much. You have always been very supportive in launching new products and also in the promotion of the industry, mutual fund industry especially. ETF के हवाले से, I think the role that SCCP has played, I think before I start my presentation, I think is I really appreciate जिस तरह से उन्होंने support के industry को. PSX especially couple of seminars जो हमने conduct किए हैं in a very short period of time, उसमें to showcase our product, I think we also appreciate. So I think हमने ऐसा नहीं देखा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, बट ETF में I think commendable job from both PSX and ETF और especially फारूक साहब. So मेरी टाइटलाइन यही है कि ETF में आपको जो एक टेम्पटेशन है टू ट्रेड इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ये आपको प्रोवाइड करता है. जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में आप जब यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती कि आप खुद ट्रेड कर सके फ्रीक्वेंटली, बट ETF वो आपको टेम्पटेशन आपको फुलफिल करता है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि यू कैन ट्रेड इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो and trade on the exchange, but in a diversified portfolio. So ये एक main चीज ETF के वाले से ये है. चूँकि we have discussed a lot, but it bears repeating कि ETF में आपको म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक ट्रेडिंग का both combination provide करता है. जिस तरह से एक म्यूचुअल फंड होता है, जिसे कोई स्टॉक फंड है, NP स्टॉक फंड की एग्जांपल लो, वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, but you cannot trade on the exchange. You have to go to the asset management company. जब आपको buy करना है या sell करना है, तो you have to go and
वो यूनिट आपको नए अपने इशू करवाने हैं या अपने सेल करने हैं when you redeem, so you have to go to the mutual fund company जिसका आपने परचेज किया है यूनिट. इसी but on the other hand अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो you buy a single stock at the stock exchange. But in the case of ETF, आप both दोनों combined feature होते हैं जहाँ पे just like a stock की तरह आप trading कर सकते हैं but in a diversified portfolio. So this ETF combined both the easy trading in a particular stock and as a diversified portfolio just like a mutual fund. So this is ETF. Again, it bears repeating कि क्योंकि लोग mutual fund कुछ अभी awareness ऐसी हो गई है कि they know it, but ETF is a new thing, so it's a good कि हम compare कर सकें कि how the ETF is similar or different from mutual fund. First thing is again मैं एक चीज mention करूँ कि industry का बड़ा अच्छा track record है हमारी mutual fund industry का. If I look at the performance comparison of equity funds of even all the AMCs, तो उन्होंने बड़ा अच्छा diversified portfolio के साथ market को outperform किया है despite all the expenses and fee. So I think mutual fund industry as a whole has added value for the investors. कि उन्होंने fee के बावजूद एक comprehensive outperformance दी है. And if you look at our fund performance, NBP fund has been at the forefront and is known for the performance of its fund, and that is reflective of the being the fastest growing AMC in one of the largest AMCs, managing currently 180 billions of assets under management. That clearly shows the growth of the company because, and primarily it is the result of the superior performance of our funds under management beside the service quality. But I think ये म्यूचुअल फंड से अंडरस्टैंड करते हैं, बट इवन अगर आप AUM देखें तो इट्स हैज नॉट ग्रोन वेरी फास्ट. इवन द इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड आर नॉट ग्रोन एट अ फास्ट पेस. I don't know the reason behind it. Despite superior performance, it has not grown at that pace. But in the trading stock market capitalization is very large. So probably perhaps it is because of the expense ratio that is in the mind of the investor. Maybe that is the reason. So वो चीज concern अगर ये diversified portfolio जो ETF का है वो इसको address कर सकता है. So with that in mind, I have drawn a very brief comparison के mutual fund versus ETF क्या है. So first benefit of a mutual fund is diversification. I will discuss in detail कि हमारा जो ETF है NBP growth ETF उसमें क्या उसके constituents क्या हैं, sectoral exposure provide करता है. So you can get an exposure to a diversified portfolio by purchasing one single unit of NBP growth ETF को purchase करने से. So and the other thing is कि unlike a mutual fund जहाँ पे आपको diversified portfolio तो मिलता है, but in case of ETF यहाँ आपको एक instantly you know what you own. You know what you own in case of ETF, but in case of mutual fund आपको पता नहीं चलता कि कौन से स्टॉक में क्या एक्सपोजर है, सेक्टोरल कितने कोई कंपनी का वेटेज क्या है. बट इन केस ऑफ ETF वो आपको मालूम हो सकता है. You can go and see कि जो what are you buying, because if you buy NBP stock fund you don't know what is the portfolio composition. लेकिन in case of ETF आपको वो clearly पता चलता है instantly. So the other thing is ETF में it's a professional management in both cases. Since any fund is professionally managed, इसी तरह से ETF manage होता है. Then risk and rewards आपको ETF का और mutual fund का same होता है. Just like ETF आपको जो भी the performance of underlying scripts or constituents वो आपको performance of the ETF will be driven by the performance of the constituents. Similar the case in mutual fund, जो भी securities holding होगी that is the return. It's a similar. Then whatever the payouts of the companies is dividend जो आपको मिलेगा, जिस तरह shares के अंदर आपको मिलता है, similar the case in the ETF वो भी आपको वही आपको payout मिलेगा. Then tax के जो benefits हैं when you invest in any mutual fund आपको जो मिलता है tax के breaks हैं वो आपको tax credit भी मिलेगा if you invest in a ETF. The benefit and benefit as well as the differences between in fund versus ETF, it has been talked about a lot. कमिश्नर साहब ने बात की and all the other my colleagues sitting here उन्होंने बात की कि इसके कास्ट कम होती है ETF की because it is a passively managed. कोई इसमें value addition उस तरह से नहीं है from the
part of the asset management company क्योंकि ये passively managed है. You select the stocks and it is passively managed. उसमें नई बाइंग नहीं करनी, कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन उस तरह से नहीं होने, बल्कि जो भी स्टॉक्स जो क्राइटेरिया को मीट करेंगे उस मेथोडोलॉजी को ETF को वो उसी में एक्सक्लूड हो जाता है. तो इसकी जनरली फी इज लोअर देन द कास्ट इज लोअर देन a mutual fund. Then performance, as I mentioned कि फंड को एक्टिवली मैनेज किया जाता है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, एंड दैट इज द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग जो है. जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज आई सेड कि उनकी जनरली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, जिन्होंने इंडेक्स को बीट किया है नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस. लेकिन इस केस के अंदर दिस इज अ डिफरेंस एंड डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं ETF के हवाले से कि उसमें परफॉर्मेंस आपको कोई एक्टिव मैनेजमेंट चूंकि नहीं होगी, तो जो भी परफॉर्मेंस होगी अंडरलाइन स्टॉक्स की वही आपको मिल रही होगी. वो ट्रैक करेंगे परफॉर्मेंस को, तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन उस तरह से नहीं है. देन अगेन द बेनिफिट एंड द डिफरेंस एज वेल एज वो ये है कि आपको उनका पता होगा आपको कि व्हाट यू ओन इन द ETF. Then buying and selling में भी डिफरेंस है, as I mentioned already कि आपको म्यूचुअल फंड के हवाले से when you buy or sell you have to go to the company, उसमें यूनिट को रिडीम करना पड़ेगा, और जनरली डे एंड के ऊपर क्योंकि एक ही दफा ही शाम की NAV मिलती है, फॉरवर्ड भी होती है बैकवर्ड भी होती है, बट जनरली एक दिन आप एक ही दफा उसको रिडीम कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं न्यू यूनिट. बट इन केस ऑफ ETF दिस इज अ बिग एडवांटेज कि आप जाके जैसे निशान साहब ने मेंशन किया कि आपको सुबह मार्केट ऊपर थी, अगर मुझे भी पता होता मैं भी ऐसे कर लेता, बट पता नहीं होता कि शाम को नीचे आ जानी है. बट इवन देन अगर आप किसी को पता है तो म्यूचुअल फंड में तो आप नहीं कर सकते, आपको शाम की NAV मिलेगी. लेकिन इन केस ऑफ ETF अगर किसी का ये गुण है तो बड़ी अच्छी बात है, वो we can make lot of money in ETF because we have exposure to a diversified portfolio and has this luxury of redeeming it anytime अपने जो PSS के प्लेटफॉर्म के ऊपर. So this is again NBP funds पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, as I already mentioned introduction does not need any introduction. NBP funds alhamdulillah it's a household name in the industry. I will talk about कि हमारा जो ETF है उसकी methodology क्या है. हमारे जो ETF है it provide exposure to 15 stocks of KC 100 index. हम और 6 sectors के अंदर exposure provide करता है. When you invest in NBP growth ETF, you can get exposure to 15 blue chip stocks with that belongs to 6 sectors. किसी एक स्टॉक का जो वेटेज है कंसंट्रेशन रिस्क को भी हमने इसको देखा कि इसको हमने ज्यादा कंसंट्रेशन रिस्क ना हो तो हमने मिनिमम 3% एंड मैक्सिमम 10% से ज्यादा कोई एक स्टॉक का वेटेज नहीं हो सकता हमारे इंडेक्स के अंदर. और जो हम इसको रीबैलेंस किया जाता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, ताकि अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म कर जाता है तो उसको जो है वो रीबैलेंस कर दी जाए विद इन दैट लिमिट उसके अंदर आ जाता है. और मैक्सिमम इसी तरह से जो हम रिकंस्टिट्यूट किया जाता है because when the whole methodology is run, मैं अभी डिस्कस कर लूंगा very briefly कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या है. उस मेथोडोलॉजी को रीरन किया जाता है एवरी 6 मंथ के बेसिस के ऊपर कि वो स्टॉक्स जो उस क्राइटेरिया को मीट करेंगे वो रिकंस्टिट्यूट हो जाए हमारा इंडेक्स बेस्ड ऑन दैट मेथोडोलॉजी. सो हमने 5 फिल्टर्स रखे हैं अपने इसको जो इंडेक्स को फाइनलाइज करने के लिए. सबसे पहले तो कोई भी स्टॉक है जो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ KC 100 इंडेक्स. रीजन बीइंग KC 100 इंडेक्स इज fairly liquid index, तो क्योंकि इसके अंदर liquidity is very important factor because ये जो luxury है कि you can trade any time during a diversified portfolio, तो जो भी उसके constituents होने चाहिए they should be very liquid ताकि market उसमें liquidity available हो. because if you own and आपको liquidity नहीं मिलती है तो obviously जो आपका objective है वो आप meet नहीं होगा. तो ये market maker के लिए भी ये जरूरी है कि वो जो भी अंडरलाइन कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके अंदर इतनी लिक्विडिटी हो. सो द पैरा क्राइटेरिया हमने रखा कि किसी इंडेक्स के पार्ट होना चाहिए. देन उसके अंदर भी हमने टॉप 30 कंपनीज इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन वो हमने फिल्टर लगाया है सेकंड. एंड देन थर्ड फिल्टर यही है कि लार्ज सम कंपनीज होती हैं कि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो हाई है बट उनके अंदर ट्रेडिंग नहीं होती. हमने ये किया कि मिनिमम जो है उनका एवरेज ट्रेडिंग उनकी होनी चाहिए, वो 100,000 शेयर्स ट्रेड हो रहे हों. देन किसी पर्टिकुलर डे में एवरी डे उसके अंदर कम से कम 10,000 यूनिट्स जो हैं उसका वॉल्यूम जो है 10,000 शेयर का होना चाहिए.
ये फिर फोर्थ फिल्टर है। एंड देन फाइनली उसके बेसिस के ऊपर हम टॉप 15 स्टॉक्स भी, उसमें भी हमने क्या किया, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को बेसिस के ऊपर जो टॉप 15 स्टॉक्स हैं उनको हमने सिलेक्ट किया। एंड देन व्हेन वी फाइनलाइज द इंडेक्स, उसमें 50% वेटेज हमने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को दिया और 50% वेटेज एवरेज ट्रेडेड वैल्यू, अगेन ताकि एक तो लिक्विड शेयर हो, उनकी मार्केट कैप भी अच्छी हो और मेन ब्लू चिप स्टॉक्स हो, वो हमारे इंडेक्स को पार्ट बन सकें। सो दिस इज हाउ हमारी जो मेथोडोलॉजी के बेसिस के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं। एंड व्हेन वी रन दिस मेथोडोलॉजी, द करंट कंपोजिशन जो हमारी है एनडीपी ग्रोथ इंडेक्स की, दैट इज इसमें 32% कंप्राइज कमर्शियल बैंक्स, 23% ऑयल एंड गैस सेक्टर, ईएनपी सेक्टर, fertilizer 19%, cement 9%, oil and gas marketing 9%, and power generation. So it's a very diversified portfolio जो आप दे सकते हैं in term of sectoral composition, जो कि आपको NVP growth index जो है ETF जो है वो provide करता है। अगर हम इसको अभी देखें तो मैंने बात की है थोड़ी सी कि जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि मेन कंपनीज हैं एंग्रो, लकी, एचबीएल, पीपीएल, पीएसओ, ओजीडीसीएल, देन हबको, यूबीएल, एफएफसी, जो हमने इन टर्म ऑफ वेटेज इसको अगर हमने देख सकते हैं कि आप बैंकिंग सेक्टर के भी जो मेन स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइजर एंड पावर, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो हमारे इंडेक्स के अंदर है। एंड इफ यू लुक एट द डिविडेंड यील्ड, इस वक्त अगर 7% की, एज आई मेंशन के 7% का आपको पॉलिसी रेट है, तो 6.5% तो डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से अर्निंग्स यील्ड इस पोर्टफोलियो की 15.4% इज द अर्निंग यील्ड, और ये आपको नजर आएगा कि काफी ज्यादा इन टर्म ऑफ फंडामेंटल्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो है। सो दोज हु वांट टू गेट एन एक्सपोजर जहां पे एक मार्केट के अंदर, तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारा इंडेक्स। दिस स्लाइड हैज बीन डिस्कस्ड almost all the participant, but it worth again repeating के कितना पोटेंशियल है, where we are sitting right now, and how we have seen the global जो है कितनी ग्रोथ ETF मार्केट के अंदर हुई है। So it is matter of awareness, क्योंकि कंपनीज के अंदर तो इन्वेस्ट करते हैं लोग, लेकिन अगर और फिर कितनी कौन सी कंपनी सिलेक्ट करें, कैसे करें, इतने सारे काम बनने के लिए, तो यहाँ पे आपको ETF के थ्रू आप एक्सपोजर ले सकते हैं। और दुनिया में the last 10 years की जो ग्रोथ रही है ETF की, अगर उसका 18% है, that shows कि how popular this product has been. Although कि even स्टॉक के अंदर भी हमारे जो UIN है बहुत कम है, एक्टिव जो UIN है, एंड इवन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर भी देखें तो few 100,000 में ही है। So this is huge potential कि आम बंदे के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर ये म्यूचुअल फंड में अगर वो नहीं आना चाहता, मे बी फॉर व्हाटएवर रीजन, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे चूंकि स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने के ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं, तो आप ये शो करता है कि दुनिया के अंदर भी इसकी पॉपुलैरिटी, एंड दैट शोज द पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोडक्ट, इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल। So this is slide that bears repeating to just to show how popular this product has been globally. Then I mean yes, मैं डिस्कस करना चाहूँगा from the brokers community perspective के NVP funds ऑफर कर रहा है कि अगर आप हमारे इस फंड को कोई भी ब्रोकर उसको पिच करता है, उसको सेल करता है, तो हम अपनी मैनेजमेंट फी का 20% वी आर रेडी टू शेयर, वी विल शेयर विद द ब्रोकर जो हमारे इस प्रोडक्ट को मार्केट करेगा। So this is an incentive apart from the brokerage जो अर्न करेंगे, या बाकी लोगों ने, जिशान साहब ने इसको एलैबोरेट किया कि आपको पास जो एक स्प्रेड होता है, यू कैन अर्न के अंडरलाइंग जो INAV का और बिड ऑफर प्राइस का जो स्प्रेड है, उसके अंदर भी जब आप रिडीम करते हैं, न्यू इश्यू करेंगे या आप उसको नई यूनिट सेल करेंगे, उसमें भी स्प्रेड है वो भी कमा सकते हैं। तो कमीशन भी है इसके अंदर जो आप नॉर्मली शेयर्स के अंदर अर्न करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट NVP फंड्स ऑफर करता है कि आप अगर आप इसको मार्केट करेंगे ब्रोकर, हम 20% जो भी मैनेजमेंट फी अर्न करेंगे वो विल बी रेडी टू शेयर विद द ब्रोकर। सो दिस इज एन एडेड बेनिफिट जो आपको यहाँ मिल सकता है। आई मीन दिस इज, आई मीन अगेन डिस्कस किया गया है कि PXS की जो वेबसाइट के ऊपर, डाटा पोर्टल के ऊपर, व्हेन यू गो देयर, दिस आर लिंक्स अवेलेबल, जहाँ पे आप NVP G ETF आप मेंशन करेंगे तो वहाँ पे सिंबल के अंदर तमाम जो इंफॉर्मेशन है, यू हैव एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन। यू कैन सी अगेन कि उसके अंदर कौन से स्टॉक्स हैं जो उसके पार्ट हैं, यू नो कि जी इसकी वैल्यू क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं। सो यू नो बिफोर यू ओन इट, यू नो कि आपके जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपने क्या परचेज करने जा रहे हैं। सो इसके बाद
जो information है, you can approach us. This is the information, the number 0800 2002 and आप मैसेज कर सकते हैं हमें invest to 9995 पे या हमारे you can write us an email info@nvpfunds.com. You can approach us our call center पे call कर सकते हैं and we will be ready to help you. आपको जो भी इसमें information चाहिए further and to invest so आप कर सकते हैं. With that I will end my presentation. I will be happy to take. Thank you very much, Sajjad Saab, for providing this detailed description of NBP funds and ETF, although it took a little bit more time, but the information was definitely worthwhile. And also जो आपने एक बड़ा thought provoking question raise किया है कि challenge of increasing AUM on ETF AUM on the exchange, and it's a great incentive that you have presented to the brokers, that is the 20% of the sharing of management fee. And nicely put, I like the word, the term that you used, that you know what you own. That's the transparency benefit we have for ETFs over the other mutual funds and other closed-end funds, that you know what you own. Thank you very much. With that, I think information was very valuable from all of the AMCs, ETF issuers, and certainly a great outlook from the Commissioner SCCP. We have few questions that have been put forward. Some of the questions are not related to ETF, so my apology for that. We won't be able to discuss those. And मैं question कर लूँगा. Anyone who wants to answer, I think they can, voluntarily answer the question. कुछ questions जो हैं वो already answer हो गए हैं, तो उसको हम touch नहीं करेंगे. So एक था कि can we receive the meeting highlights? I am sure all of the AMCs would be willing to share the presentations, and PSX can provide that over the website, or SCCP can also help us on that. One question is about the dividends, कि अगर कोई ETF के constituents dividends देते हैं, तो क्या वो dividend investors को मिलेंगे? So Zishan Sahab, would you like to add to that? जी हाँ सर. So basically ETF भी, because it's a mutual fund, हमारे ऊपर एक legal requirement ही होती है कि हम अपनी income का जो 90% होता है, तो हमें in the form of dividend अपने unit holders को देना होता है. So it effectively means के जो हमें dividend मिलेगा underlying से in an ETF, 90% of that, that's the minimum. So minimum 90% of that dividend would be distributed to the unit holders of ETF. So technically पूरा dividend जो है वो आगे pass on. Okay, good stuff. I think that's very helpful. Dividend जो है वो मिलेगा investors को, और fund की nature ऐसी होती है कि dividend अगर नहीं भी मिलता, for example, वैसे तो मिलेगा, but fund की value में वो reflect हो जाता है. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल. एक और चीज असल में थोड़ी सी है जिसमें करना ये चाहूंगा कि एक जो यूजुअली ETFs पास थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वर्ल्ड ओवर जहां आप देखिए, which means कि जो भी इसमें डिविडेंड आता है वो यूजुअली इन्वेस्टर को पास ऑन कर दिया जाता है. उसकी एक तो रीजन जैसे एक्सप्लेन की कि ऑब्वियसली 90% तो हमें वैसी इनकम अपनी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, बट जितना कैश इसमें पड़ा रहता है उसकी वजह से उसमें ट्रैकिंग एरर भी बढ़ता है, उसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क जो है उससे मुतासिर होती है. तो इवन जो इश्यूअर होता है उसके लिए भी बेहतर ही होता है कि उसको जितना भी पास थ्रू कर दिया जाए डिविडेंड अमाउंट को, तो वो परफॉर्मेंस भी उसकी वजह से इज बेटर एज कम्पेयर टू अगर हम अपने पास कैश रिटेन करें. Good. Thank you very much. एक क्वेश्चन हमारे पास आया कि commissions can erode returns depending on broker. तो इसमें I think हमारी जो analogy है वो बड़ी simple है कि we are talking about people those who are investing in stocks. तो आप stock में invest करें, depends on the amount. तो either stocks में जाएं या ETF में आएं, commission is there. And अगर आप mutual fund में invest करते हैं तो mutual fund also goes and invest in the market. That commission is also reflected in the cost of the mutual fund. So this is, I think, comparable is drawn
इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है ETF की वजह से. और how secure is the ETF investment versus mutual fund? So Asad Saab, would you like to address this one? Okay, how secure is the ETF investment as compared to mutual funds? देखिए दोनों केसेस में जो बेसिकली मैकेनिज्म्स को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, वो SECP is there, stock exchange is there, risk management framework is very strong, CDC is there. तो इसलिए from risk management perspective mechanism is very strong. मैं इसमें अगर हसन I guess इसमें the answer is no difference, right? Yeah. So the answer is, मैं- and whoever is interested in knowing whether there's a difference in terms of, versus a mutual fund, a normal mutual fund, there is zero risk difference, if that's the question. Right. Okay. And बिल्कुल इसमें एक जो चीज है असल उसमें वो ये है कि रिस्क तो अभी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट स्ट्रेटजी का फर्क है. आई थिंक मुझे भी एक्चुअली वन ऑफ आवर क्लाइंट्स वाज देयर, वो ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड बेहतर है या ETF बेहतर है बेसिकली. तो देयर इज नो दोनों अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ कस्टमर जिसको लगता है कि अल्फा जनरेट कर सकता है फंड मैनेजर, तो जैसे अभी सजाद कह रहे थे कि इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है फंड मैनेजर ने, तो आप फिर जाहिर म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे जहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट होती है. बट इफ यू आर टाइप ऑफ अ कस्टमर जो ये समझता है कि ओवर लॉन्ग टर्म इंडेक्स का रिटर्न और फंड के रिटर्न ओवर लॉन्ग टर्म सेम होंगे, सो देन यू आर द वन जो ETF की तरफ जा रहे होंगे. एंड देन देयर आर डे ट्रेडर्स. सो जो डे, और जाहिर है हर तरह का जो कस्टमर होगा, कस्टमर नीड होगी, उसके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी है. इफ यू आर अ डे ट्रेडर and you don't want to take exposure in one or two scripts, but do want to do a day trade, then probably ETF is something जो आप देख रहे होंगे. दोनों का रिस्क पैरामीटर जाहिर है, दोनों इक्विटी एक्सपोजर एंड लाइन टू रिस्क बिल्कुल सेम है, लेकिन स्ट्रेटजी का जरूर फर्क हो सकता है. मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं अगर देखिए इसमें ये है कि रिस्क के पर्सपेक्टिव में डिफरेंट एंगल हो सकते हैं. एक है इन्वेस्टमेंट रिस्क के पर्सपेक्टिव में कि आपको म्यूचुअल फंड अगर कोई होगा तो उसमें म्यूचुअल फंड के जो एसेट मैनेजर होगा उसके पास डिस्क्रिप्शन है कि कौन से स्टॉक सिलेक्ट करे, किस सेक्टर में जाए. लेकिन ETF के अंदर एज मैंने मेंशन भी किया कि इसमें कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगी. जो भी मेथोडोलॉजी के बेसिस के ऊपर आपको मालूम है, जैसे मेंशन किया कि ETF में जाएंगे तो आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन से सेक्टर में जाता है, इसमें क्या कौन कौन से स्क्रिप्ट होंगे, उनके वेटेजेस क्या होंगे, वो आपको मालूम है. ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे मेंशन किया कि MVP स्टॉक फंड अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो बस फंड मैनेजर क्या कौन से सेक्टर में इन्वेस्टेड होगा या करेगा या रीबैलेंस करेगा, नए उसमें चेंजेस लेके आएगा, वो तो फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिप्शन उसको मैनेज करेगा. बट ऑब्वियसली फंड मैनेजर की जो परफॉर्मेंस जो हिस्ट्री है वो अगर आप देखें चाहे MP फंड को या दूसरे फंड मैनेजर्स की, तो वो काफी सुपीरियर है कंपेयर्ड विद एनी बेंचमार्क. एक तो ये चीज होगी. दूसरा जो उन्होंने कहा अगर कोई रिस्क है तो देखिए जिस तरह से रेगुलेटर है, SECP है, ETF का रेगुलेटर भी वही है, म्यूचुअल फंड का भी वही है, बड़े क्लोजली वो वॉच करते हैं. तो उस लिहाज से कोई रिस्क उस तरह से नहीं है, कोई एडिशनल रिस्क के ETF में या किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो मार्केट का रिस्क है वो तो दोनों में होगा. लेकिन ये फिर जैसे मैंने मेंशन किया कि ETF के अंदर एडवांटेज भी है कि अगर आपने से कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खुद बनाया हुआ है और आप चाहते हैं पूरे पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करें, तो यू हैव टू सेल ईच स्क्रिप्ट को सेल करना पड़ेगा आपको, एंड देन यू कैन एग्जिट द मार्केट. और आपने एक स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग हो रही है या प्राइस आपको मिल रही है, दूसरे में नहीं मिल रही. लेकिन ETF के अंदर यू जस्ट सेल वन ETF एंड योर एक्सपोजर इज जीरो. सो दिस इज देन एडेड एडवांटेज. So there thank you very much. We are getting other questions. एक और चीज है, बिकॉज़ मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दो चीजें इधर हम डिस्कस करें. एक तो रिस्क के हवाले से आई थिंक इन्वेस्टर्स का मेन कंसर्न होता है कि तो एक तो ये कि ये स्ट्रक्चर ही म्यूचुअल फंड के ऊपर बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर है. सो वी हैव अ ट्रस्टी, ज्यादातर के पास CDC है, जो एसेट्स की जो कस्टडी होती है वो ट्रस्टी के पास होती है.
तो ये तो स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, तो इन दैट रिगार्ड ETF और म्यूचुअल फंड का रिस्क इज एग्जैक्टली सिमिलर। लेकिन मेरे नजदीक एक एडेड लेयर इसमें ETF में रिस्क मिनिमाइज करने की एक और भी ऐड ये हो जाती है कि इट्स एन इन काइंड ट्रांजैक्शन। तो नॉट हमारे पास जब इन्वेस्टर आता है तो वो हमें एक्चुअली स्टॉक का पोर्टफोलियो देता है जिसके अगेंस्ट हम यूनिट इशू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कैश दिया जाता है जिससे फिर फंड मैनेजर गोज आउट एंड बाय सिक्योरिटीज, बाय एंड सेल जो भी होता है वो फंड मैनेजर कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ शायद एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी इस तरह से भी ऐड हो जाती है कि डायरेक्ट सिक्योरिटी आती है, वो आपके CDC अकाउंट में चली ट्रस्टी के पास चली जाती है और वहीं से इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इन केस ऑफ रिडेम्पशन इश्यूर को वापस कर दी जाती है। सेकेंडली एक ये तो क्वेश्चन ऑब्वियसली मेरा ख्याल सब इन्वेस्टर्स के दिमाग में होगा कि वेदर ETF और म्यूचुअल फंड्स। द इशू इज कि जिशान ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं समझता हूँ जहां पे भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वहां म्यूचुअल फंड्स भी सक्सेसफुल है और ETF भी सक्सेसफुल है। इसी तरह स्पेशलाइज्ड पेंशन फंड्स भी मौजूद हैं, फिर सेक्टर बेस्ड ETF है, हर किसी का रिस्क प्रोफाइल अलग है। तो इट्स अप टू द इन्वेस्टर कि वो क्या चीज अपनी इन्वेस्टमेंट में से चाह रहे हैं। ऑब्वियसली अगर उस बेंचमार्क बीट करना उसका मकसद है तो वो म्यूचुअल फंड की तरफ जाएगा जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा। अगर वो चाह रहे हैं कि वो एक पैसिव इन्वेस्टमेंट जो कि एक जनरल क्राइटेरिया के मुताबिक एक बेंचमार्क को ट्रेस करती रहे विदाउट एनी एडिशनल रिस्क, तो प्रोबेबली उसके लिए ETF अच्छा है। अगेन इसमें फर्दर डाइवर्सिफिकेशन, जो पेंशन फंड होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म फंड होते हैं उनका अलग तरह का इन्वेस्टर होता है, उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है, उसी तरह से मैनेज की जाती है। तो ये एडेड एडवांटेज इसका ये है कि आप इसको दिन में कई दफा ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे अंडरलाइन सिक्योरिटी में और INAV के अंदर आपको गैप नजर आए वहां ट्रेड करके उस गैप का बेनिफिट आप ले सकते हैं इन केस ऑफ ETF, जो कि शायद किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इस तरह से अवेलेबल नहीं है विद अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो ये एक थोड़ी सी चीज थी जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। Thank you very much, Wasim Saab, and the other representatives of AMCs. इसमें टाइम हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हमारे वेबसाइट के ऊपर काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी मौजूद है, एंड ये चारों AMCs यहाँ पे मौजूद है, तो दे कैन बी रीच्ड इवन आफ्टर दिस सेमिनार, एंड PSX कैन आल्सो बी रीच्ड। एक क्वेश्चन था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, तो जो मिनिमम लॉट साइज है 500 शेयर्स का, दैट्स द मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इन ETF। और अगर ऑड लॉट में ETF आपको मिल जाए और खरीदना चाहे तो उससे भी कम आप परचेज कर सकते हैं। और वन क्वेश्चन वाज कि वन ऑफ द ब्रोकरेज फर्म्स डज नॉट अलाउ देम टू बाय इन ETF। वी लुक इनटू इट, दे शुड बी एबल टू बाय। NBP पोर्टफोलियो से क्वेश्चन है कि टेक स्टॉक्स और ऑटोमोबाइल दे आर नॉट इन योर ETF। तो मेरे ख्याल आपने बेहतर एक्सप्लेन किया कि बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया लिक्विडिटी जो स्टॉक्स इसके अंदर आ रहे हैं वो इस इंडेक्स के अंदर शामिल है। इफ यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स, सजाद साहब प्लीज। जी बिल्कुल, इसमें ये कि टेक स्टॉक ने जब से परफॉर्म किया है उनकी कैपिटलाइजेशन अगर बढ़ जाएगी, उनकी लिक्विडिटी जैसे आ रही है, तो ये जब भी कंपोजिशन होगा नेक्स्ट होगी उसमें वो क्राइटेरिया को मीट करते हुए दे कैन बी बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडेक्स। हमारे जो इंडेक्स है उसका पार्ट बन जाएंगे। कोई भी स्टॉक, कोई भी सेक्टर जिनका ये क्राइटेरिया को मीट करेंगे वो आ जाएंगे हमारे इस इंडेक्स के अंदर। सो आपने भी एक्सप्लेन किया, दैट इज अगेन माय आंसर इज सेम। Okay, thank you very much. अब हम बाकी, there was a question around can we short sell the ETFs? तो जो हमारे मार्केट मेकर हैं और जो authorized participants हैं, they can definitely short sell the ETF given the pre-existing interest. And the definition of pre-existing interest is a little bit different for the market maker and for the authorized participant. Securities lending and borrowing, द वे जैसे अगर आप स्टॉक्स को शॉर्ट सेल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ETFs को भी शॉर्ट सेल कर पाएंगे। वी आर वर्किंग विद SECP एज वेल कि हम इसमें अनाउंस करें अपना कि फ्यूचर्स के अंदर जो है वो हम इसको लेके आएँ ETF को, तो दैट्स आल्सो बीइंग वर्कड। और इसके अलावा लेवरेज में जो हमारे पास अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे MES, MTS, उस पर भी
ETF will be available or is already in some of the world already available. We move to one question was, can you advise how much percentage of my total investment should be invested in ETF? So any one of the fund managers can help us here. देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आई विल स्टिल से कि आप एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो और ऐसे फंड मैनेजर को सिलेक्ट करते हैं जिसका सुपीरियर परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड हो तो क्योंकि फेयरली अगर आप देखें तो उन्होंने जनरली मार्केट को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है म्यूचुअल फंड्स ने और हमारे भी अगर आप फंड की देख लें यू कैन सी लॉन्ग टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म परफॉर्मेंस तो जनरली दे हैव आउट परफॉर्म द index a net of management fee in all costs and expenses. तो अगर आप long term investors हैं तो I would still recommend honestly speaking not कि उसमें management fee हमारे ज़्यादा होती है तो biased है बल्कि you can see कि still after deducting all the expenses अगर mutual fund ने कोई 15% 20% अगर 3 साल में beat किया है तो मैं उसको ये recommend करूँगा कि ऐसे asset manager को आप में invest करें उनके actively managed mutual fund के अंदर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना चाहते हैं आपका एक्सपोजर नहीं है यू डोंट वांट टू गो एंड उस ईज आपका प्रायोरिटी है तो उस सूरत में आप ETF में अपना पोर्टफोलियो का में से 20% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 80% अगेन एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो में आप कर सकते हैं तो दिस इज आई मीन माय आंसर टू योर क्वेश्चन मे आई ऐड इसमें बेसिकली डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर किस अप्रोच के साथ जा रहा है फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है डायरेक्ट सिक्योरिटीज के थ्रू एक्सपोजर ले रहा है लेकिन अगर वो चाहता है कि एक बास्केट का एक्सपोजर ले और मार्केट वॉलिटिलिटी का फायदा उठाए तो उसके अंदर वो फिर ETF के अंदर कुछ पोर्शन थ्रू ETF दे कैन टेक एक्सपोजर और मार्केट की टेक्निकल एलोकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें एक और चीज ये कि जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ना उसके हिसाब से ऑब्वियसली अगर एक अच्छा फंड मैनेजर है जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है एंड ही हैज बीन बीटिंग द बेंचमार्क कंसिस्टेंटली तो ऑब्वियसली एक सर्टेन पोर्शन अगर आप अपना डायरेक्ट इक्विटीज में एक्सपोजर नहीं रखना चाहते तो म्यूचुअल फंड्स इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ये सारी दुनिया में जो ETFs किसी फॉर्म में इन वन वे और द अदर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का पार्ट होता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजी it's a passive product. आप जब ETF में इन्वेस्ट करते हो तो you basically invest in a certain strategy that that ETF offers. So for example, अगर मैं NIT पाकिस्तान गेटवे ETF की बात करूं तो वो आपको एक high level of exposure दे रहा है और the overall market through just one security. उसका objective market को beat करना नहीं तो एक छोटी इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिल रहा है थ्रू जस्ट वन ETF। इसी तरह जैसे आगे मार्केट डेवलप होती है तो दुनिया में भी हमने देखा फिर सेक्टर स्पेसिफिक ETFs आ जाते हैं तो मिसाल के तौर पे अगर आपको आगे जाके लग रहा है कि आप सीमेंट सेक्टर आपके लिए एक अच्छा है एंड यू वांट टू टेक अ डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर टू द सीमेंट सेक्टर तो प्रोबेबली एक सीमेंट सेक्टर का ETF विल बी मोर फीजिबल फॉर यू जो कि आपको एक जनरल एक्सपोजर दे देगा टुवर्ड्स द सीमेंट सेक्टर और एक सर्टेन रिटर्न ऑफ द एंटायर सेक्टर आप अर्न करते रहेंगे लेकिन देन अगेन म्यूचुअल फंड्स अगर आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चल रहे हैं और एक अच्छे पोर्टफोलियो में आप एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं तो कुछ ना कुछ पोर्शन ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स भी होंगे लेकिन ETF हमने जो देखा है ओवरऑल वो ये है कि a certain portion of the entire portfolio does come in favor in form of ETFs as well. चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो चाहे कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन हमारे पास आया कि डिवैल्यूएशन ऑफ पाक रुपीस तो आई थिंक दैट्स इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्लासेस इन पाकिस्तान जो भी है फिक्स्ड इनकम रियल एस्टेट गोल्ड व्हाटएवर इट इज keeping apart gold which may somehow provide some protection on that end so is there an ETF for real estate तो I think अभी तक कोई specific real estate का ETF नहीं है
So there are questions coming. So I think with that we will close. If somebody wants to add, Farooq Saab, if should you wish to close this session, or anyone else want to add something from the panelists, appreciate that. Thank you very much. नहीं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक very useful and hopefully first in a string of webinars that we should be doing. ये जो सवाल आपके पास आए हैं ये बहुत natural हैं. I think the natural recourse that, you know, we sit around at the commission looking at policy matters, thinking कि what is the first port of call that an investor needs to make when he's investing in the market. So first port of call should be a mutual fund because उसकी अपनी expertise lacking है as an investor. He should use mutual funds to basically make his investment decisions because there's more, you know, talent in there. They will handle the money. ये जो question है कि कितना portion होना चाहिए in ETFs, again it depends on your risk profile. But I think जिस तरह ये products आएंगे, so अगर for example कोई ETF होता जिसका नाम होता cyclicals, and if you had, you know, focused on what the macro numbers were, and you would have focused on interest rates and uska direct benefit to cyclical stocks, which was autos, cements, all of these consumer discretionaries, wo would have outperformed massively. So agar tabhi main keh raha hu, theme based ETFs, as they pick up pace, people's interest in these ETFs will also pick up, and a portion should always be invested in an ETF as well. If you want to do active investments, that's fine. But passive investment में थोड़ा पैसा definitely होना चाहिए. And depending on what theme-based product is available, you can probably more than 20 or 25% of that allocation in an ETF. But that would be my view. Dusra, I really appreciate some of the comments that came out from Wasim, Zishan Saab, Sajjad, Asad Saab. Thank you very much. Very, very useful. कुछ चीजें I think we'll have to take up with the brokers. ये जो एक ticker डालना है online platforms पे कि उन्होंने ETF का ticker नहीं डाला हुआ, वो डलवाते हैं. So yeah, we need to I guess actively, you know, try and manage that side, that they should be promoting this product as well, because as somebody pointed out, it's got all the positives going for it. It's diversified, it's cost friendly exposure for people. So no reason why it should not pick up in Pakistan as well. So thank you very much, Farooq Saab, and thank you very much all of the panelists. Close करते हैं, inshallah. As Farooq Saab said, it's a series of webinars. So this is probably first of the one. So इसको close करते हैं असद साहब के दूसरे मिसरे पे कि मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख